بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے چند گھنٹے قبل سیاسی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتہائی عام پریس کانفرنس کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پریس کانفرنس پر پاکستانی قوم آج آزادانہ رائے کا اظہار کرتی، لیکن حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس کے جمعہ بازار نے اس پورے معاملے کو الٹا کر رکھ دیا ہے، اور یہ پریس کانفرنس اب پیچھے چلی گئی ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں۔ لیکن کپتان کے ویڈیو پیغام نے حکومتی پریس کانفرنسز کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ایکسٹینشن اور ملاقاتوں پر اسد عمر، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری نے آج اپنا موقف پیش کیا ہے۔ شہید ارشد شریف کے جنازے سے کس کو کیا پیغام تھا، یہ بھی انتہائی عام معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ارشد شریف شہید، آج ان کی تدفین ہوئی، ان کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ اسلام آباد فیصل مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، دوسری طرف لاہور اور باقی شہروں کے اندر بھی غائبانہ نماز جنازے ہوئے۔ وہ کوئی سیاسی جماعت کا ورکر نہیں تھا بلکہ ایک صحافی تھا، اور اس کے اندر بڑا پیغام ہے کہ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جو لوگ اپنے نظریے اور اصول پر ڈٹ جاتے ہیں، خواہ ان کے لیے مشکلات ہوں، جلا وطنی ہو، لیکن پھر وہ ہمیشہ کے لیے قوم کے اندر زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج مرد و خواتین جو ہے وہ بےتاب تھے، جس طرح کے جذبات کا اظہار کیا گیا، لیکن ارشد شریف شہید کئی لوگوں کے لیے کئی سوالات کھڑے کر کے گیا ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بغاوت پر اکسانے کے مقدمے کی سماعت ہونا تھی، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کی وجہ سے یہ کاز لسٹ منسوخ ہوئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ارشد شریف کا جنازہ تھا اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگا ہوا تھا۔ یہ کیس 2 دن پہلے فکس نہیں ہوا بلکہ چند ہفتے پہلے اس ڈیٹ کے لیے مقرر تھا، لیکن یہ ایک اعلان ضرور تھا کہ ہمیں بغاوت کے اندر جو ہے اکسانے کے معاملے پر 16-17 مقدمات ان پر قائم کیے گئے، ان کی زندگی کے لیے خطرات تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو آج اپنا بیان دیا ہے، اپنا موقف پیش کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر آج بات ہوتی، ارشد شریف کے جنازے پر بات ہوتی، ارشد شریف کی حالات زندگی پر بات ہوتی، لیکن نالیک اور نائل ٹولہ جو اس قوم پر مسلط ہے، شاید انہوں نے سمجھا کہ اس جنازے پر، ارشد شریف کے مشن پر بات نہیں ہونی چاہیے، اور ان تمام لوگوں نے اپنے وہ بوتھے جن کو عوام دیکھنا نہیں چاہتی، جس ضمنی انتخابات کے اندر عوام نے جمہوری لتر پریڈ کی ہے، وہ ایک آتا ہے وزیر، وہ اپنا بوتھا لے کر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پریس کانفرنس شروع کر دیتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ اس وقت تک حکومتی سطح پر 8 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ مجھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آج انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو عوام نفرت کا نشان سمجھتے ہیں اور آج کے دن وہ کیوں آنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، تاکہ آج اتنا باتیں کرو، اتنے ٹی وی کے اوپر آؤ، سکرین پر آؤ، کہ کوئی بندہ بھی ارشد شریف کا جو ذکر ہے وہ کس مشن کے تحت تھا، کس طرح اس نے قربانی دی، اس پر بات نہ ہو سکے، اور یہ قابل نفرت کردار جو ہے وہ آج اس قوم کو دیکھنے پڑے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ ٹی وی چینلز کی ریٹنگ دن بدن گر رہی ہے۔ پی ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے، سرکاری نشریاتی ادارہ ہے، جیو سما جتنے دیکھ لیں، اس کے اوپر کردار دیکھ لیں، کتنے لوگ جو ہے اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کے لوگ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر پاک فوج کے حوالے سے بیانیہ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور زیادہ لوگ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کا مشکوک ہوتے ہیں۔ حالانکہ پاک فوج سے محبت کرنے والی پوری قوم ہے، لیکن جب وہ لوگ جو ماضی کے اندر جنرل باجوہ، جنرل جو فیض حمید، ان کا نام لے کر اور پورے ادارے کے اندر جس طرح رینک اینڈ فائل کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، وہ جب وزیر دفاع ہوگا شخص اور نواز شریف ان کا لیڈر اشتہاری لندن میں بیٹھا ہوگا، تو پھر لوگ سمجھیں کہ اس نظام کی، اس حکومت کی عزت ہوگی، تو یہ چیزیں بڑی۔ تو شہید ارشد شریف کے جنازے کا پیغام یہ ہے کہ اصول پر اگر آپ کھڑے ہیں
तो कोई बात नहीं, कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानियां देने के बाद ही असल जो है वो पाकिस्तान अपने मंजिल तक जो है वो पहुंच सकता है। दूसरी तरफ आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमती हुई हैं उनको तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने अपना नुक्ता नजर भी बयान किया है। पहले ये इतला आई कि इमरान खान 3 बजे आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आदम सवाती जो है वो कहां चले गए हैं उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो है वो पूरा मामला जिसके अंदर जो एतराजात उठाए गए थे वो पीटीआई ने उस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। एक तो फवाद चौधरी ने कहा है कि हम नहीं चाहते, यानी एक तरफ अगर राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसफ हो, शहबाज शरीफ हो, वो सियासी क़यादत है, उनको जवाब देना हमें आसान होता है और हम आपस में लगे रहते हैं, लेकिन बड़ी हैरत है कि आज DGISI और DGISPR इस मामले के अंदर कूदे हैं। अब इन इदारों को हम क्या जवाब दें। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि पीटीआई के इन रहनुमाओं ने 2-3 चीजें बड़ी आम की हैं और ये बात इमरान खान चूंकि जलसों के अंदर भी करते रहे हैं। उन्होंने एक तो ये सवाल उठाया है कि इंतखाबात कराने से मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात करवाएं, चूंकि अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया है। पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए, अब हुए, अवाम का मोमेंटम मौजूद है उनका और ये मुतालबा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, तो उन इंतखाबात को होने दीजिए। साइफर जो है वो अगर मन घड़त था तो फिर डी मार्च क्यों किया गया? ये डी मार्च करना जो है इस पर सवाल उठाया गया, चूंकि खुद DGISPR साहब जो है उनके बयान का एक तादाद सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो पहले कहते रहे कि ये साजिश नहीं मुदाखलत है, तो अब वो कहते हैं कि वो कागज का टुकड़ा और वो ड्रामाई अंदाज, तो हजूर बता दीजिए उसके अंदर लिखा हुआ क्या है और वो इमरान खान क्या झूठ बोल रहा है कि उसके अंदर तहरीके अदम एतमाद का जिक्र है। ये बात उसके कंटेंट जो है उस पर आप गुफ्तगू कीजिए और इमरान खान को झूठा साबित करें ताकि ये मामला जो है वो हमेशा के लिए हल हो। वो किसकी राय थी, कहां से आया था, क्या उसके मुताबिक जो उसके अंदर मुबैना तौर पर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाओ, तो वो उस करवाई गई या नहीं करवाई गई, उस तरह हुआ नहीं हुआ। तो इस कंटेंट पर जब तक जो है वो हमारे इदारे बात नहीं करेंगे तो ये लोग जो है उनके दिमाग ठीक नहीं हो सकते, ये बात उनको समझनी है। दूसरा, मीटिंग्स के हवाले से असद उमर ने बताया कि जनाब मीटिंग्स बिल्कुल हुई है। इमरान खान ने हमेशा जो है वो बात की है मीटिंग्स के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो बात पब्लिक के अंदर भी कर रहे हैं, वो इदारों को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ ना लेकर जाएं, तो ये उनका मौक़िफ़ है। आर्मी चीफ से मुलाकातों में कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया, सबकी ख्वाहिश है इदारे सियासत में हिस्सा ना लें, अगर हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा तो आसानियां होंगी। कल एक साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों में खौफ फैलाना था। लंदन के बयानात से पोल खुल गया उस सारे मामले का। 25 मई को हुकूमत ने तशद्दुद किया, हम तो पुरअमन थे, हमारी पॉलिसी बड़ी वादे है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब ये जो एक्सटेंशन का मामला है, असद उमर का मौक़िफ़ ये है कि अगर आर्मी चीफ को ये कहा गया, जनरल बाजवा साहब को, कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए ये कर रहे हैं तो फिर एक्सटेंशन हम भी आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये ऑफर रखी, तो इस पैराए के अंदर उन्होंने एक्सटेंशन और मुलाकातों के हवाले से बात की है कि आप मुलाकातों के अंदर फ्री एंड फेयर का इलेक्शन का मुतालबा है, अगर कोई और बात की है तो वो आप अवाम के सामने ले आए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तलखी में एक तो इजाफा हुआ और तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ जो है वो वादे किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो खान साहब ने एक पैगाम भी जारी किया है और वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने और ज्यादा सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसी तरह गद्दार का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है कि यहाँ के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, और फिर उन्होंने उसी पैराए के अंदर कहा है कि हकीकी आज़ादी की जो जंग है वो कल शुरू होने जा रही है, लॉन्ग मार्च है, उसके अंदर अवाम शरीक हूं। तो अब अवाम जो है वो कितना शरीक होते हैं, और मुझे कम अज कम जो है अवाम का वो मोमेंटम कम अज कम जहां मेरा जिला है वहां वो नजर नहीं आता। उन सियासी कायदीन को भी मैं मिला हूं जिनकी ड्यूटीज है, पता नहीं क्या वजह है, उनके अंदर भी वो चीज मुझे नजर नहीं आई कि अवाम सारी घरों से निकल पड़े और एक बड़ा इनकलाब आए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो निकलेंगे। तो खान साहब के
वीडियो पैगाम एक जारी किया 2 मिनट का, और हुकूमत का जो जुमा बाजार है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, भाई पहली मर्तबा DGISI जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी गर्द उड़ती है, बहुत सारी गलतफहमियां हो सकते हैं। DGISI की गुफ्तगू से कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, कुछ बातें उनसे इत्तफाक किया जा सकता है। तो आज इस 2 बातें थी। एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी मैं तो नहीं समझता कि आज जरूरत थी, ये कल भी हो सकती थी। आज सिर्फ अरशद शरीफ शहीद जो है उनके जनाजे, लोगों की शिरकत, उसको मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए थी, उस पर बात होनी चाहिए थी। और उन पर बहुत सारे सवालात भी लोग उठा रहे हैं कि भाई वो 17-16 मुकदमात किसने कायम किए थे अरशद शरीफ के खिलाफ, और कौन इस तरह के मुकदमात कायम करता है। ये जब भी सहाफी होते हैं तो इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। फिर टेलीविजन चैनल से जो एंकर्स हैं उनको फिर कौन करता है, ये नामालूम जो कॉल्स हैं, वो बात दुरुस्त है कि उसके अंदर जो है वो होता है। तो कुछ वो सवालात हैं जिनको अभी भी जस्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन मामला ये है कि जो पाक फौज के जर्नैल हैं वो इधर है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां देकर वो इन ओहदों पर पहुंचे हैं। लेकिन जब ये हुकूमती जो चेहरे हैं जिस तरह राना सनाउल्लाह, अब इससे ये काबिल नफरत किरदार समझती है। आप एक सर्वे करवा लें पाकिस्तानी अवाम का, तो ये काबिल नफरत चेहरे हैं इस वक्त, ये जो भी करें। अब उसके बाद ख्वाजा आसिफ है, अब देखिए ये पाक फौज के इदारे का दिफा कर रहा है। अगर तो ये DGISI की और ये जो गुफ्तगू थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर बात होनी चाहिए थी, इसके प्लस माइनस, इसकी जमा तफरीक, कौन सी बातें सही है कि कौन से मजीद इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालात उठे हैं, वो सारी बात होती तो अच्छी बात है, डिबेट होनी चाहिए, ताकि कोई भी नहीं चाहता कि इदारों के हवाले से गलतफहमी फैले। लेकिन ये किरदार जो है, ये 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक हुकूमती लोग कर चुके हैं। मकसद उनका मैं बयान कर चुका हूं, बड़ा मकसद यही है कि अरशद शरीफ की कहानी आज मीडिया पर आने की बजाय राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है, अता तारड़ ने ये कहा है, यही चलता रहे। अब ये बात भी की गई। और दूसरा जो है वो कोई ज़ाहिर है उन्होंने कहा है हमने गलतियां की हैं, लेकिन मेरे पास जो है देखिए ये एक अखबार है, खबरें अखबार है, और ये 2008 का है, गालिबन 19 नवंबर 2008 का अखबार है। उस वक्त भी स्टेटमेंट यही थी कि पाक फौज ने सियासत में फौज की मुदाखलत खत्म, ISI का सियासी शोबा बंद कर दिया गया। और ये पूरा वो विंग कायम हो, हर हुक्मरान मर्जी के काम लेता है। मुशर्रफ दौर में बंद करने की तजावीज़ आई, फौजी सियासतदानों से रब्ता नहीं रखेंगे, जनरल कियानी के हुक्म को गाइडलाइन बनाया गया है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो आज जो बात कितनी बार ये कहा गया कि सियासत से हमारे जो इदारा है, एस्टैब्लिशमेंट, उसका ताल्लुक नहीं है, उसका पास नहीं रखा गया। तो इस वजह से लोग आज भी शकूक शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। वल्ला कोई भी, मैं समझता हूं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता कि फौज पर तनकीद हो, फौज को गालियां निकलें। इस तरह की जबान वैसी काबिल मुजम्मत है, गलीज जबान इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सियासी किरदार है इस पर सवालात उठते हैं। जब हामिद मीर जैसे लोग चहेते बन जाएं, जब गरीदा फारूकी और जो इस तरह के किरदार हैं वो अगली लाइन में DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों, तो इस तरह के मशकूक जो किरदार हैं, जो काबिल नफरत चेहरे हैं, जब वो इतने हों तो उसकी वजह से, और ये फजल रहमान और ये नवाज शरीफ और जरदारियों का तसल्लुत इस मुल्क पर कायम हो, तो लोग इनकी नफरत की वजह से जो इदारे हैं उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये बात अगर हमारे इदारे समझ जाएं, इमरान खान से आपका इख्तलाफ हो सकता है, इमरान खान इसका कम अज कम आप मुतबादल तो कोई ऐसा लाते कि जो ये लोग जिन्होंने पूरे मुल्क को लूटा है, और ऐसे लगता है कि जैसे इनको मुसल्लत किया गया है। तो ये बड़े मामलात हैं। लेकिन हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो जुमा बाजार आज लगाया गया है, उसने पूरा जो DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको खुद किल कर दिया है। और उस पर बात होने की बजाय चले टेलीविजन चैनल तो करेंगे, वो आगे और तरफ मामलात गए हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। अगली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।